Okay. So yesterday we have started new topic, purchase info record, right? So we gone through that the theoretical part. So today we will be creating info record. Okay. So just एक revise कर लेते हैं what exactly the info record is. So info record is nothing but it's one of the master data record, which in that we need to maintain the relationship between the material and vendor. So what kind of details we need to maintain then? That price, discounts. Apart from this, also we need to maintain uh, over delivery, under delivery tolerances. Then GR based invoice indicator should be active, right? And even the planned delivery time also we need to maintain. And yeah, price and discounts also I have already mentioned. Order unit we need to maintain. Apart from this, also there are n number of things we need to maintain, but these are the important ones. So while creating, I will be explaining you all those details as well. Even we have discussed the transaction codes. So for creating any PR, we need to maintain the transaction code as a ME11 for the creation. For change, it will be ME12, and for display, it will be ME13. And if you want to check the list of the PR by material wise or by vendor wise, likewise, so you can just execute the T code as ME1M, and you will go get that details in a report form. And whenever you are creating any info record in Fury, so just you need to maintain or as a like a manage purchasing info record for creation, for change, and for display. It will work. Okay. So as I discussed earlier, first we will be executing all the cycles on GUI screen, and then later on we'll be executing all the cycles on Fury app as well. Okay. Okay. Again, also we have discussed key PR is maintained for the combination of whatever the things I have mentioned, means mentioned in the initial screen, like it's maintained for the combination of vendor, material, purchase of plant, info record, and info category. Also, most of them having doubts. For example, one material is there, and that one material, the sources of supply are, for example, one or many. So is it possible to maintain one info record for a number of vendors for one material? No. So there will be n number of info records. So whatever, for example, if material one material is there, and for one material you have five source of supply. Source of supply is in the sense vendor or supplier. So at that time you need to maintain five info records. Same work with the vendor as well. Okay. Then also uh, we gone through what exactly the info category is. Info category is nothing but it defines what kind of procurement it is. So we have standard, subcontracting, pipeline, and consignment. Apart from this, also we have different procurements. Okay, so that we are going to see while creating a PO. But yes, while creating PR, we have the standard predefined info categories. But if your client wants to customize apart from this, if any of the procurements, for example, just as I mentioned, if import procurement is there, so is it possible to customize? No. Info category जो standard है वो उतना ही होगा. Okay. Then ये मैं आपको screen print भी आज explain करती हूँ. Again, just whatever I have mentioned now कि what exactly we are need to maintain, तो वही यहाँ पे mention किया गया है. उसके बाद also we have discussed the benefits of the info records, right? And what exactly the significance of info record is. So once you understand the significance why we need to maintain the info record, then and then only you will be able to understand. Okay, so like while creating a PO, okay, if you are creating a manually also, and even you are going to create a automatic PO, so for both cases this PR will be playing a vital role. As if you are maintaining that combination, whatever combination you are going to maintain in purchase order, as like material, vendor, purchase order, and plan, if this combination you are maintaining in this PO, and for this combination if info record is maintained, obviously system will search that combination in a back end. Okay, and that data will be fetched in PO automatically. If not maintained, then what you have to do is you just need to maintain manually. क्लियर? ये कल भी हमने डिस्कस किया था. इस पे कुछ डाउट्स है? इवन आपको
सिंपली कोई इन्फो रिकॉर्ड भी पूछता है तो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन। ऐसे ही नहीं है कि क्या एक्सप्लेन करा, अगर वो सिंपली आपको कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो इन दैट वे यू कैन आंसर, राइट। जैसे हमने कल भी बहुत बार डिस्कस किया था कि वेंडर का हो गया कितने, एक मटेरियल के लिए ज्यादा वेंडर होंगे तो हमें कितना इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करना होगा, लाइक वाइज। ओके, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फो रिकॉर्ड क्या है अगर पूछते हैं तो जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इन दैट वे यू कैन एक्सप्लेन। ओके। ओके, अभी ये जो यहाँ पे स्क्रीन प्रिंट मैंने ऐड किया है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट भी, ये एक्सेल शीट मैं आपको सेंड कर देती हूँ आज। ओके, अभी यहाँ पे मैंने क्या क्या मेंटेन किया है, सी। ऐसे ही केडीएस आपको प्रिपेयर करना है इन रियल टाइम। ओके, एंड इवन व्हेन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, वहाँ तभी भी आपको ऐसे ही टेबल, मतलब केडीएस प्रिपेयर करना है। ओके, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, जैसे मैंने कहा आपको जैसे कन्वीनियंट लगे अकॉर्डिंगली यू कैन मेंटेन। ओके, देन ये देखिए इन्फो रिकॉर्ड नंबर, यहाँ पे आप ऐसे एक कॉलम बना सकते हो। देन कौन से मटेरियल के लिए आप मेंटेन कर रहे हो, ये ऑब्वियसली ये पूरा की कॉम्बिनेशंस है हमारे, राइट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है कि कैसे आप टेबल्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो ऑब्वियसली इस की कॉम्बिनेशंस के लिए हम इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो ओके, फॉर मटेरियल, फॉर सप्लायर, कौन से परचेस और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से प्लांट के लिए प्रोक्योर कर रहे हो, एंड पीआईआर कैटेगरी क्या है। पीआईआर कैटेगरी इट मीन्स योर इन्फो कैटेगरी, एक ही है। ओके, उसके बाद कितने जो हम चीजें मेंटेन करने वाले हैं, द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू मेंटेन इन इन्फो रिकॉर्ड, तो वो कॉलम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि लाइक वो मटेरियल वो वेंडर से उस परचेस और के लिए, उस प्लांट के लिए, इस कैटेगरी के लिए, मतलब कौन से कैटेगरी, स्टैंडर्ड, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, पाइपलाइन, लाइक वाइज, तो वो कैटेगरी आपको मेंशन करना था कितने प्राइस में ले रहे हो। अभी ये प्राइस आपको, जैसे मैंने कल कहा था, तो ये आपको कोटेशन से मिल जाएगा। ओके, जो वेंडर सेंड करेगा टू योर क्लाइंट, तो वो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ऐसे इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो वो प्राइस आपको यहाँ पे सिस्टम, मतलब पहले तो प्रॉपरली प्रिपेयर कर लीजिए केडीएस, फिर आपके लिए इजी हो जाता है सिस्टम में भी मेंटेन करना। अगेन, जैसे मैंने बहुत बार बोला है कि हमें इन रियल टाइम जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो एक एक चीजें आपको मैन्युअली मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इन मास वी कैन अपलोड, बट अभी हम मैन्युअली क्यों देख रहे हैं एक एक चीजें, बिकॉज ये पूरा आपको सिस्टम अवेयर नहीं है, राइट। तो पहले हमें ऐसे मैन्युअली ही जाना है। जब हम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के वक्त मैं आपको बताऊंगी हाउ वी कैन डू दी इन मास अपलोड, लाइक दिस। ओके, प्राइस हो गया, डिस्काउंट्स, तो इसको सप्लीमेंट्री कंडीशंस भी बोल सकते हो आप, राइट। तो ये सप्लीमेंट्री कंडीशंस एग्जैक्टली होते कौन कौन सा है, वो इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी इन प्राइसिंग प्रोसीजर। प्राइसिंग प्रोसीजर भी हमें एक अलग से टॉपिक है, उसमें हम इन डिटेल देखने वाले सप्लीमेंट्री कंडीशंस। फाइन, देन फ्राइट चार्जेस होता है, राइट। फ्राइट चार्जेस बहुत लोग, मतलब सभी को ऑलमोस्ट पता ही होगा। कोई बता सकता है व्हाट एग्जैक्टली द फ्राइट चार्जेस आर, एनीवन? बायर अगर कुछ आता रहेगा तो। मैम जो आने जाने की कॉस्टिंग होती है वो डिलीवरी कॉस्ट है ये। करेक्ट, आप हाँ, करेक्ट करेक्ट, मतलब आपको हाँ, वो आने ट्रांसपोर्ट जाने की कॉस्ट, कॉस्ट भी आप बोल सकते ट्रांसपोर्ट हो। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस। कॉस्ट है इसमें। करेक्ट, इन शॉर्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आप बोल सकते हो। इवन आपका वो टोल प्लाजा के भी चार्जेस, उसमें कॉस्ट ऐड होती है इसमें, फ्राइट चार्जेस में, राइट। तो वो हो गए आपके कंडीशन, सप्लीमेंट्री कंडीशंस विच विल बी अपलोडेड ऑन दिस प्राइस, राइट। लाइकवाइज, तो वो हम इन डिटेल प्राइसिंग प्रोसीजर में और देखने वाले कि कैसे इंक्लूड किया जाता है, राइट। कैसे हमें प्रॉपरली वो चीजें मेंटेन की करनी होती है, तो वो हम प्राइसिंग प्रोसीजर में देखेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आपको डिस्काउंट हो गया या फिर फ्राइट चार्जेस, ये थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगी, ठीक है। अभी सिंपली हमें इस वक्त पीआईआर में जब हम क्रिएट करेंगे तो ये दोनों चीजें अभी मेंटेन नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये प्राइसिंग प्रोसीजर में जब आपको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस थिंग्स आर, तब आपको पीआईआर में भी कैसे मेंटेन करना है ये समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस मेंटेन करते हो, दैट इज मोर देन इनफ, ओके, अभी के लिए। जैसे प्राइसिंग प्रोसीजर समझ में आएगा तो ऑब्वियसली फिर आपको ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगा एट दैट टाइम। फाइन, देन अगेन हमने ये भी कल डिस्कस किया था कि अंडर डिलीवरी ओवर डिलीवरी टॉलरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं। ओके, अभी और भी
लोगों का मतलब आप लोगों का डाउट्स था कि अगर हम मेंटेन ही नहीं करते हैं, हमें स्पेसिफिक नहीं पता है कि कितना परसेंटेज रखना है, कभी कभार उससे भी ज्यादा हो सकता है, कम आ भी सकता है, तो उस केस में मेंटेन मत कीजिए। बट यस, अगर ज्यादा आ रहा है, ओवर डिलीवरी हो रहा है, ओके, तो उस केस में और एक ऑप्शन है हमारे पास उसी में, अनलिमिटेड करके। अगर वो अनलिमिटेड आप एक्टिव कर रहे हो, तो कभी कभार अगर मतलब अगर टॉलरेंस भी मेंटेन नहीं कर रहे हो, सिर्फ अनलिमिटेड एक्टिव कर रहे हो, लेट मी शो यू कहाँ पे होता है वो। मैं पहले स्क्रीन प्रिंट में दिखा देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इन सिस्टम एज वेल। ये दिख रहे हो आप, अनलिमिटेड करके ऑप्शन है। मैं ज्यादा ओवर डिलीवरी के केस में बोल रही हूँ, बट आप बोल रहे हो कि ठीक है मैंने 5% मेंटेन किया था, बट इसके ऊपर भी आ जाता है कभी कभार, तो यहाँ पे अगर आप अनलिमिटेड मेंटेन करते हो, तो कितना भी मटेरियल है सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। वैसे अंडर डिलीवरी के लिए ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ओवर डिलीवरी के लिए अनलिमिटेड। क्लियर? उसके बाद जीआर बेस्ड इनवॉइस इंडिकेटर, इसका पर्पस में मैंने आपको कल बताया था। अगर आप एक्टिव रखोगे तो क्या होगा? एनीवन? क्या होगा, सिस्टम पे कैसे इम्पैक्ट होगा एक्टिव रखेंगे तो? पर्पस क्या है इसका? मतलब जितने का गुड्स, सॉरी, जितना क्वांटिटी का गुड्स आया उतने का ही इनवॉइस ओके। वेरिफिकेशन होगा। अगर ओके। उससे ज्यादा और कम रहा और वेंडर ने अपने को, मान लो कम भेजा है उसने माल और पूरे का इनवॉइस भेजा है, तो फिर वो एरर बताएगा सिस्टम। ठीक है। आगे। अगर वो टॉलरेंस के बाहर है तो वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। ओके। और बाकी? विदाउट जीआरएन इनवॉइस प्रोसेस नहीं कर सकते। करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे टॉलरेंस का कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टॉलरेंस, कितना भी टॉलरेंस के लिए तो आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो ना। तो फिर जीआर बेस्ड इनवॉइस इंडिकेटर, जैसे राहुल ने बताया कि विदाउट जीआरएन आप डायरेक्टली इनवॉइस प्रोसेस कर ही नहीं सकते हो। तो वो बहुत बार होता है, ऐसे होता है, बहुत बार होता है कि जैसे मैंने बोला अर्जेंसी की केस में, तो उस केस में वो दैट इज डिफरेंट पार्ट। नॉट ओनली दैट, और एक ऐसे प्रोक्योरमेंट है, वो प्रोक्योरमेंट में हम दोनों केसेस देखने वाले हैं, अगर इनएक्टिव कब रखना होता है, एक्टिव कब रखना होता है, इसलिए ये फंक्शनैलिटी दी गई है। बट मोस्ट ऑफ टाइम मीन्स एवरी टाइम यू नीड टू कीप इट एज एक्टिव। उसके अलावा जीआरएन के अलावा आपका इनवॉइस होना ही नहीं चाहिए, बेसिकली देखा जाए तो। अर्जेंसी की केस वो एक अलग बात है। और एक ऐसा प्रोक्योरमेंट है, उस केस में आपको जीआरएन नहीं करते हो, डायरेक्ट इनवॉइस करते हो। ओके। उसी की वजह से ये दोनों फंक्शनैलिटी दी है। तो जब हम वो प्रोक्योरमेंट स्टडी करेंगे एट दैट टाइम ये आपको मैं बताऊंगी इसका एक्टिव इनएक्टिव लाइकवाइज। बट अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि ऐसे जीआरएफ बेस्ड इनवॉइस इंडिकेटर कहाँ पे होता है? पीआईआर में होता है। तो अभी हमें क्या करना है? एक्टिव ही रखना है। जैसे मैंने कहा, ऑलमोस्ट सभी केसेस में हमें एक्टिव ही रखना होता है, सिर्फ एक ही केस है जहां पे इनएक्टिव रखना होता है। ओके, तो वो इनएक्टिव का केस मैं बाद में बताऊंगी। तो अगर एक्टिव रखते हैं, तो जीआरएन के अलावा डायरेक्टली इनवॉइस नहीं कर पाएगा आपका एंड यूजर, तो इट शुड बी एक्टिव। फाइन। देन प्लान डिलीवर टाइम। अभी प्लान डिलीवर टाइम इट मीन्स कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वी कैन से कि इतने दिनों तक, इतने दिनों में वो मुझे डिलीवर करेगा मटेरियल। ओके, सो दैट इज नथिंग बट द प्लान डिलीवर टाइम। फाइन। अगेन, मैंने यहाँ पे और आपको क्लैरिटी आए, समझ में आए, इसलिए मैंने यहाँ पे शीट में भी मेंशन किया है कि विच इंफॉर्मेशन वी आर नीड टू मेंटेन। वी नीड टू मेंटेन मटेरियल, ग्रॉस प्राइस, देन सप्लीमेंट्री कंडीशंस, मतलब यही ये कंडीशंस। अभी फिलहाल हम सिर्फ प्राइस मेंटेन करने वाले हैं, जब हम प्राइसिंग प्रोसीजर स्टडी करेंगे एट दैट टाइम आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि हाउ वी कैन मेंटेन द सप्लीमेंट्री कंडीशंस। ओके। Then we need to maintain under delivery, over delivery tolerances. We need to make that GR based invoice indicator as active. ये देखिए, अभी जो मैं आपको बोल रही थी ना कि एक ऐसे प्रोक्योरमेंट है कि जहाँ पे हमें इनएक्टिव रखना होता है जीआर बेस्ड इनवॉइस इंडिकेटर। वो हो गया आपका कंज्यूमेबल एंड इंपोर्ट के केस में, कि दोनों केस में आपको इनएक्टिव रखना होता है, दिस जीआर बेस्ड इनवॉइस इंडिकेटर। ये दोनों छोड़ के सभी के लिए आपको एक्टिव ही रखना है। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। मैम ये टॉपिक समझा नहीं, थर्ड वाला जो है ना, जीआर बेस इनवॉइस। इसके लिए मैं एक सेपरेट आपको एक टॉपिक है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सिर्फ अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए कि जेआर बेस्ड इनवॉइस इंडिकेटर हमें फिलहाल एक्टिव रखना है। ओके। ओके,
इसमें इन डेप्थ जब कंज्यूमेबल एंड इनपुट प्रोक्योरमेंट हम जब स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली दिस जीआर बेस्ड इनवॉइस इंडिकेटर इज क्लियर। देन प्लान डिलीवरी टाइम जो मैंने बोला था, और इन डिटेल वील चेक इन P2P साइकिल। देन ऑर्डर यूनिट, ओके, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। बेस यूनिट ऑफ मेजर विल बी मेंटेन बाय इंटरनली, मीन्स इंटरनली आपके क्लाइंट के साइड से ऑर्डर यूनिट जो मेंटेन किया जाएगा, मतलब कौन से इसमें आप ऑर्डर कर रहे हो और वो सेल कर रहा है कौन, वेंडर, तो वो होगा ऑर्डर यूनिट। टैक्स कोड, अभी ये टैक्स कोड जैसे हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर होता है ना, इंक्लूडिंग दिस डिस्काउंट सप्लीमेंट्री कंडीशंस एंड प्राइस, वैसे ही उनके टैक्सेस होते हैं, टैक्स प्रोसीजर कहा जाता है। तो ये टैक्स प्रोसीजर कौन मेंटेन करेगा, आपका फाइनेंस टीम मेंटेन करता है। जैसे हम प्राइसिंग प्रोसीजर मेंटेन करते हैं वैसे आपका फाइनेंस टीम प्राइसिंग प्रोसीजर, सॉरी, टैक्स प्रोसीजर मेंटेन करते हैं। तो बहुत आप सभी को पता है ऑलमोस्ट टैक्सेस, CGST, SGST, राइट, GST। तो वो एक कंडीशंस कितने रखने हैं, कैसे रखना है, सो लाइकवाइज विल बी मेंटेन बाय फाइनेंस। बट आपको फिलहाल इतना ही याद रखना है कि टैक्स कोड भी हमें मेंटेन करना होता है। फाइन, फिर ये कौन आपको देगा, फाइनेंस टीम कॉन्फ़िगर करके दे देगी रियल टाइम में, सिर्फ आपको वो टैक्स कोड मेंटेन करना होता है, दैट्स इट। क्लियर, एनी डाउट्स ऑन दिस? ओके, जो मैंने वो शीट में मेंशन किया था आर्टिकल, वही यहाँ पे डाला, बाकी कुछ नहीं है। जैसे मैंने बोला, अगर PIR पूछते तो आपका आंसर कैसे होना चाहिए, जैसे अगेन ब्रेक डाउन कैसे करना आपको, आपके आंसर्स आपको पहले ही सोच लेना है जब आप आंसर करोगे, एक्सप्लेन करोगे कि मेरा वे ऑफ आंसरिंग कैसे होगा, हाउ यू नीड टू आंसर। तो लाइक जब PIR का होगा तो यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट PIR इज मेंटेन फॉर द कॉम्बिनेशन, मतलब की कॉम्बिनेशन, देन व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस ऑफ PIR इज। क्लियर, तो ये ऐसे तीनों में आपका PIR प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए अपने, कि प्रॉपर सभी एक्सप्लेनेशन ये तीनों का मैंने यहाँ पे शीट में मेंशन किया। बाकी के भी टॉपिक्स के लिए मैंने मेंशन किया, इवन जैसे मैंने मटेरियल का भी, जस्ट मैं आपको बाकी का भी एक जस्ट आइडिया दे देती हूँ कि ये हो गई बात आपकी PIR की, कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सेम फॉर मटेरियल, अगर मटेरियल मास्टर क्या है ऐसे अगर आपको पूछ रहे हैं, तो यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स वी नीड टू मेंटेन इन मटेरियल मास्टर। ओके, उसके बाद आपको पता भी होना, ऑलरेडी यू नो कि एज अ कंसल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एंड यूजर को पूछ रहे हो तो मटेरियल क्या है, दैट्स इट। कंसल्टेंट के लिए ये पता होना चाहिए कि मटेरियल टाइप क्या है। जैसे मैंने बोला था, फॉर क्रिएशन ऑफ मटेरियल व्हाट एग्जैक्टली द प्री रिक्विजिट्स आर, सो वी नीड टू क्रिएट मटेरियल टाइप। Already we have n number of standard materials type which is predefined in the system, but still if your client wants to customize, we can, right? So we need to customize material type. Then we have control functions, that control functions also you need to explain. ओके, ऐसे ही रुकना नहीं है कि आपका इंटरव्यूअर पूछेगा कि कंट्रोल फंक्शंस क्या है, नो, आपने प्रॉपरली सभी आंसर देना है। क्लियर, देन वन सेंटेंस आंसर नहीं होना चाहिए। ओके, देन मटेरियल ग्रुप आपको एक्सप्लेन करना, आफ्टर दैट मटेरियल ग्रुप को तो ऑब्वियसली कंट्रोल फंक्शंस नहीं है, राइट। सो इन डिटेल अगर आप बता रहे हो, सो अगर आप वहां पे आपको बोल रहा है इंटरव्यूअर कि ठीक है इतना सफिशिएंट है, देन इट इज फाइन। ओके, तो ये हो गया मटेरियल का, मटेरियल टाइप, मटेरियल के टाइप के कंट्रोल फंक्शंस, देन योर मटेरियल ग्रुप, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन कि आप मटेरियल ऐसे ऐसे क्रिएट कर सकते हो, राइट। एंड डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर रेंजेस पूछ रहे हैं, तो नंबर रेंजेस सेम फॉर ऑल द टॉपिक्स, राइट। सिर्फ इतना ही है, अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पूछ रहा है कि नंबर रेंजेस फॉर मटेरियल मास्टर, सो यू कैन एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली। तो नंबर रेंजेस होता क्या है, इट्स अ यूनिक नंबर फॉर एनी काइंड ऑफ डेटा, मास्टर डेटा ऑल्सो, राइट। सो वी हैव इंटरनल एक्सटर्नल, लाइकवाइज यू कैन एक्सप्लेन। एंड उसके किसका क्या ड्रॉबैक, एक्सटर्नल का ड्रॉबैक क्या है, इंटरनल का क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, प्रोज एंड कॉन्स लाइकवाइज। एंड सेम फॉर द वेंडर मास्टर डेटा, व्हेन नंबर रेंजेस आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर अगर वेंडर मास्टर डेटा देखा जाए, अगर वो पूछ रहे हैं डिफरेंस, देन यू कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ECC एंड S/4HANA, राइट। फिर आप वेंडर मास्टर डेटा के लिए, जैसे मैं बोलता, वेंडर क्रिएशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वो पूरे प्री रिक्विजिट्स आपको एक्सप्लेन करना है, और मैंने वो स्टेप्स भी दिए हैं, वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। अगेन वो आपको डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं पूछते हैं कि पाथ बताइए या फिर टी कोड्स बताइए, नेवर, दे नेवर आस्क। और आपने प्रैक्टिस किया है तो ऑब्वियसली टी कोड्स अगर मान लीजिए पूछ भी लेते हैं, आपको वो बताते आएगा ही, राइट।
अगर वो प्रॉपरली आपने कॉन्फ़िगर किया होगा तो। क्लियर? सो यस, अगेन यहाँ पे और एक, जैसे कल मैंने बताया था कि एक मटेरियल आपको एन नंबर ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई हो सकता है, आपका सप्लायर हो सकता है, वेंडर हो सकता है। लाइकवाइज एक मटेरियल के लिए अगर एन सप्लायर्स हैं एन नंबर ऑफ, तो पीआर कैटेगरीज भी अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर आपको कितने इन्फो रिकॉर्ड्स क्रिएट करने होंगे? मान लीजिए एक मटेरियल के लिए एक ही वेंडर है, बट इन्फो कैटेगरीज तीन है, मतलब प्रोक्योरमेंट अलग अलग है, वो स्टैंडर्ड भी है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी हो रहा है एंड कंसाइनमेंट भी हो रहा है। सो एट दैट टाइम कितने पीआर आप क्रिएट करोगे? आई एम टॉकिंग अबाउट वन मटेरियल एंड वन सप्लायर, ओके? ओनली इन्फो कैटेगरीज आर थ्री, थ्री इन्फो कैटेगरीज, तीन प्रोक्योरमेंट्स है। सेपरेट होंगे मैम, अलग अलग होंगे यस, कैटेगरी। करेक्ट। तीन यस, पेयर अलग अलग बनेंगे। तीन पीआर बनेंगे। ओके, ओके, देन सिर्फ आपको वैसे प्रॉपरली फिर मेंटेन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि मटेरियल आपको प्रॉपर मेंशन करना है, फिर कौन से सप्लायर से ले रहे हो, परचेस और प्लांट, पीआर कैटेगरीज भी यहाँ पे मैंडेटरी मेंटेन करना। ओके, while maintaining the KDS. Okay, so just I will explain you how we can create. Just एक example ले लेते हैं हम। Okay, so the T code is ME11 for the creation supplier. तो रैंडमली मेरा जो सप्लायर वो मैं ले सकती हूँ। आइदर आपने जो सप्लायर स्टैंडर्ड परचेस और के लिए या फिर स्टैंडर्ड आपके और स्ट्रक्चर के लिए लिया होगा, यू कैन टेक दैट। आपने जो खुद कॉन्फ़िगर किया, ऐसे नहीं कि मैंने जो मटेरियल लिया है या फिर मैंने जो सप्लायर लिया है वही आपको लेना है, नो। बट बस इतना ही आपका रिक्वायरमेंट होगा कि लाइक जो आप सप्लायर क्रिएट कर रहे हो, देन मटेरियल क्रिएट कर रहे हो, एनी ऑफ द मास्टर डेटास, वो स्टैंडर्ड के लिए ही होना जरूरी है। क्लियर? या फिर आपको लिस्ट, आपको लिस्ट देखना है, आपको केडीएस भी प्रिपेयर किया एंड स्टिल यू वांट टू चेक द लिस्ट कि कितना वेंडर इस परचेस और के लिए, देन आपका कंपनी कोड के लिए, प्लांट के लिए मेंटेन किया गया है, तो आप कैसे चेक कर सकते हो? टी कोड है उनकी विजिट, वो मैंने वेंडर मास्टर डेटा शीट में मेंशन किया है, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। मैं देखूंगी कि मेरे ये स्टैंडर्ड परचेस और के लिए कितने सप्लायर्स है मेरे पास। सो लाइकवाइज यू कैन मेंटेन इवन सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपके आपके खुद के अकाउंट ग्रुप के लिए आपको देखना है। जैसे मैंने बोला था कि लास्ट टाइम वी हैव क्रिएटेड दिस अकाउंट ग्रुप, तो फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए देख रही हूँ, तो हमारा ये भी सप्लायर आप ले सकते हो, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी के लिए मेंटेन करता हूँ, लिया है तो। आई विल ओपन न्यू सेशन। मैम फिर हमारे अपने प्रैक्टिस में भी यही सप्लायर लेंगे कि हम अपना बना सकते हैं? आप पर अपना ही बनाइए या फिर ओके। यही ले सकते हो, बट ओके। आप जो खुद का बनाओगे वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के लिए बनाना है, मतलब मैं समझा नहीं थोड़ा सा। स्टैंडर्ड ऑर्ग स्ट्रक्चर के लिए। ओके। ओके, अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रक्चर लिख के जो बना हाँ, है, ओके। यस, स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रक्चर मैंने सेंड किया है, राइट? चेक करें, आई थिंक आई हैव सेंड, बट जो बाकी रिसेंटली अभी ज्वाइन हुए थे, शेयर अगेन। जस्ट अ मिनट। मैं सेंड कर देती हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। ओके, देन ME11, you have to maintain that supplier मटेरियल। मेरे पास एक मटेरियल है, अगर मटेरियल की भी लिस्ट लेनी हो, वी हैव द टी कोड फॉर दैट। न्यू सेशन ओपन करके
वो उसका भी मैंने लिस्ट दिया हुआ है, मैं मतलब मेंशन किया हुआ है शीट में। ओके, MM60 मटेरियल लिस्ट आप देख सकते हो सिलेक्शन क्राइटेरिया वाइज कि कौन से प्लांट के लिए है, मटेरियल टाइप अकॉर्डिंगली, या फिर मटेरियल टाइप ग्रुप के, और किसने क्रिएट किया था, दैट वन। ठीक है, तो मैं प्लांट वाइज अगर ले लेता है तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हो। ओके, और अगर आपने खुद का क्रिएट किया हुआ है, बट अगेन स्टैंडर्ड आर्ट स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, तो वो भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Fine? देन मेरे पास मेरा मटेरियल है एक 71 करके, मैं वो ले लेती हूँ। यू हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर एंड यू हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड प्लांट, KG 02। ओके, एंड इन्फो कैटेगरी मैं अभी फिलहाल स्टैंडर्ड ले रही हूँ। ओके, मैं आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी करके बताती हूँ कि साइमल्टेनियसली आप दोनों कर सकते हो क्या, फॉर सेम मटेरियल एंड फॉर सेम सप्लाई। फाइन, और ये क्या होगा, ये ब्लैंक होगा। जब ये इन्फो रिकॉर्ड सेव होगा तो सिस्टम खुद यहाँ पे ओन जनरेट करता है इन्फो रिकॉर्ड नंबर। क्लियर? बस इनिशियल स्क्रीन पे इतना ही डालना है, बट ये डालने से पहले जैसे मैंने बोला था, इसे प्रॉपरली लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। मान लीजिए मैं ये दो रख रही हूँ और स्टैंडर्ड ले रही हूँ, सब कॉन्ट्रैक्टिंग ले रही हूँ। मैं मेरे यहाँ पे मैंने परचेस ऑर्डर मेंटेन किया है, देन प्लांट। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो हमें डिस्काउंट एंड फ्राइट चार्जेस जैसे मैंने बोला था नहीं लेना है। यहाँ पे सिर्फ ऐसे कंसिडर करते कि ये 10 रुपीज में दे रहा है और ये 10.5, लाइकवाइज एंड टॉलरेंसेस। GR बेस्ड इनवॉइस इंडिकेटर एक्टिव रख रहे हो तो एक्स रखना है, एक्टिव ही होना चाहिए, राइट। एंड प्लान डिलीवरी टाइम, जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, तो ये आपको डिटेल्स जैसे मैंने कहा वेंडर से मिल जाएंगे, इस डिटेल्स। ओके, सो ऐसा आपको KDs प्रिपेयर करना है, उसके अकॉर्डिंगली एंटर। ओके, ओके, KG 02 में प्लांट मैंने गलत डाला है। फाइन, वो चीजें इनिशियल स्क्रीन पे एंटर करने के बाद ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आप आओगे। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन इनटू वी आर इनटू जनरल डेटा। ओके, जनरल डेटा में यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड अभी इन नंबर जनरेट हुआ नहीं तो ये ब्लैंक रहेगा। सप्लायर का नाम और आपका कोड आ गया है, मटेरियल, मटेरियल ग्रुप। और अभी देखिए देखिए ये सप्लायर डेटा, ये हमें मेंटेन नहीं करना है। दिस डेटा विल बी मेंटेन बाय SD पर्सन्स। ओके, हाँ, अभी ये ओरिजिन डेटा में अगर देखोगे कि मैन्युफैक्चरर कौन है, नंबर उनका, राइट, देन कंट्री ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह होता है, तो ये पूरा डिटेल्स आपका वेंडर का है। तो वो भी आपको इन कोटेशन मतलब आपके वेंडर्स को, वेंडर से मिल जाएगा टू योर क्लाइंट। तो वो डिटेल्स वैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, अभी फिलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सो मैं ये ब्लैंक रखूंगी। बट अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम ये कंट्री एंड मतलब आपका ये रीजन एंड ओरिजिन ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम ले लेगा। कैसे ले रहा है, क्योंकि मैंने ये जब स्टैंडर्ड कंपनी कोड मेंटेन किया था, जब हमने क्रिएट किया था उस वक्त मैंने मेंटेन किया था। तो स्टैंडर्ड का मैं ले रही हूँ, मतलब स्टैंडर्ड कंपनी कोड के लिए मैं इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ, तो वो डेटा ही वहां से फेच हो रहा है। फाइन, अगेन यहाँ पे सप्लाई का ऑप्शन है कि अवेलेबल फ्रॉम अवेलेबल टू। ओके, तो वो आपको यहाँ पे डेट डालना होता है। देन यहाँ पे रेगुलर सप्लायर, जैसे मैंने बोला था कि वन टाइम सप्लायर करके भी एक है फैक्टर जो वेंडर अकाउंट ग्रुप में हम मेंटेन करते हैं। सेम लाइकवाइज यहाँ पर इन्फो रिकॉर्ड में अगर ये रेगुलर सप्लायर है तो आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो। मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर आप यहाँ पे एक्टिव करोगे तो जब PO क्रिएट किया जाएगा तो पहली प्रायोरिटी सिस्टम इसी को देगी, पहली, अगर आप रेगुलर यहाँ पे एक्टिव कर रहे हो तो, राइट। देन यहाँ पर नीचे हमने कल डिस्कस किया था ऑर्डर यूनिट के बारे में, राइट। तो ये कन्वर्जन फैक्टर आप यहाँ पे मेंटेन करो, जैसे वन पैकेट इनटू कितने पीसेस, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, तो वो कन्वर्जन फैक्टर आप यहाँ पे मेंटेन कीजिए। तो ऑर्डर यूनिट आपको यहाँ पे डालना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे MG ये कहाँ से आया है, मैंने तो कुछ मेंशन नहीं किया था। देन आपके स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड इन, ये स्टैंडर्ड मतलब ये जो है ना, ये मटेरियल 71 करके जो बेस यूनिट ऑफ मेजर रखा हुआ है इसके लिए, लेट मी शो यू दैट आल्सो।
तो बेस यूनिट ऑफ मेजर जो लिया होगा ना आपने इस मटेरियल के लिए, वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम यहाँ पे लेगा ऑर्डर यूनिट को भी। देखिए, अच्छा, मटेरियल बनाने के टाइम पे जो बेस यूनिट लिया होगा वो वही दिखा रहा वही लेगा। यस, है। ऑर्डर यूनिट जो आप बोल रहे हो ना स्टैंडर्ड, उसका ऐसे ऐसा स्टैंडर्ड है नहीं ऑर्डर यूनिट का कोई यूनिट। ये जो आया है यहाँ पे बेस यूनिट ऑफ मेजर का है। जैसे मैंने कल बोला था, अगर आपका बेस यूनिट ऑफ मेजर और ऑर्डर यूनिट अगर सेम भी होता है, तभी भी आपको यहाँ पे मेंटेन करना, ब्लैंक नहीं रखोगे। सो दिस इज मैंडेटरी एंट्री। क्लियर? ओके मैम, इन सारे में से हमें कौन कौन से फील्ड भरने एज ये एम देखिए, एम? हाँ एज एम एम, ये देखिए, आपको सप्लायर सब रेंज, देन सप्लायर मटेरियल ग्रुप, यहाँ पे तो ये सेल्स पर्सन वगैरह हमें मेंटेन नहीं करना है। देन दिस सेक्शन, ऑल दिस सेक्शन, एंड दिस वन, परचेस और यूनिट का। ओके मैम, ये सप्लायर मटेरियल ग्रुप तो शायद सप्लायर देगा कि क्या है, हम सप्लायर कॉन्फ़िगर? देगा, ये सप्लायर पूरा देगा। डिटेल्स आपको सप्लायर देता है। यस, ये ओके। भी डेट हम भी मतलब ये भी डेटा हम भी मेंटेन कर सकते हैं, बट ये पूरा डेटा आपको सप्लायर से मिलना जरूरी है। हाँ, अगेन ये जो सब रेंज है ना, ये आपको सप्लायर से नहीं मिलेगा, ये हम क्रिएट करता है। तो हमारा एक सेपरेट टॉपिक है, इसको सप्लायर सब रेंज भी कहते हैं, वेंडर सब रेंज भी कहते हैं, एक ही बात है। तो उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है कि हाउ वी कैन क्रिएट सप्लायर सब रेंज। तो ये अभी हमने क्यों नहीं सीखा, क्योंकि इसके ऊपर और दो तीन चीजें फैक्टर्स डिपेंडेंट है। तो इसीलिए वो हमें आगे जाके देखना है कि सप्लायर सब रेंज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यस, दिस वी कैन क्रिएट, एंड इवन दिस वन सप्लायर लेकिन मैम, मटेरियल। हमारा बी वाला जो वेंडर बीपी पार्ट तो खत्म हो गया, ये सप्लायर सब रेंज बाकी थे, कौन से टॉपिक में कवर होगा? वो आपका जब स्प्लिट वैल्यूएशन वगैरह होगा, एट अच्छा, दैट स्प्लिट टाइम। वैल्यूएशन किट, अच्छा स्प्लिट करेक्ट। वैल्यूएशन। ओके, अगेन एग्रीमेंट होगा आपका, तो आपको एग्रीमेंट रिटर्न करना है, सो एट दैट टाइम यू कैन मेंशन दैट वन। तो ये पूरा डिटेल्स आपको बेसिकली क्लाइंट ही देगा। ओके, अभी फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो क्या मेंटेन करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। कंट्री ऑफ ओरिजिन रीजन अगर नहीं आया होगा तो ये मेंटेन करना है। देन रेगुलर सप्लायर एक्टिव मत रखिए अभी। ओके, ऑर्डर यूनिट डालना है, अगर आपको देखना है, चेक करना है, तो आप कर सकते हो। मान लीजिए एमजी, अभी जैसे मतलब मान लीजिए, मैम, अगर पीसेस रखना हो, पीसी पीसी। रख सकते हो। लाइक आप बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पे पैकेट्स था, बेस यूनिट ऑफ मेजर पैकेट्स था। ओके, वन पैकेट था, ये किसका है, हमारा है, बट वो पीसेस में सेंड कर रहा है। तो हम कंसिडर करते हैं वन पैकेट्स इंटू 10 पीसेस। लेट मी मेंटेन दिस, वो डायरेक्टली सिस्टम ने मुझे पहले सेक्शन में लिया है अभी। ठीक है, पहले ये देखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे चेंज हुआ है। जैसे कल देखा था ना हमने कि वन पैकेट इक्वल्स टू 10 पीसेस, 20 पीसेस हो सकता है, कन्वर्जन ओके। फैक्टर वी नीड टू मेंटेन। तो वो दिखा देती हूँ। अभी सिस्टम मुझे पहले नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके गया है, इनटू परचेस और डेटा पे। तो ये पहले देख लेते हैं। ओके, नाउ वी आर इनटू कंट्रोल डेटा इनटू परचेस ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया, पहले प्लान डिलीवरी टाइम हमें मेंटेन करना है एज एम एम। परचेस ग्रुप, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी विल बी गिवन बाय योर क्लाइंट अगेन। देन शिपिंग इंस्ट्रक्शंस होता है, यहाँ पे शिपिंग इंस्ट्रक्शंस भी हम ही मेंटेन करते हैं, इवन एसडी पर्सन भी मेंटेन करते हैं, बट वी कैन, सो इतना कुछ अलग से टेक्निकल पार्ट नहीं है इसमें। शिपिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आप वाया रोड प्रोक्योर कर रहे हो वो मटेरियल, या सी, लिक्वाइज। ओके, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा क्या आपका, तो वो आपको जस्ट यहाँ पे मेंटेन करना होता है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको वो कॉन्फ़िगर करके, एक्चुअल कॉन्फ़िगर करके आपको कौन देगा, योर एसडी का पर्सन, शिपिंग। ओके, देन शेल्फ लाइफ होता है मटेरियल्स के, राइट। तो वो शेल्फ लाइफ अगर मोस्टली फूड्स मटेरियल के लिए हो गया, या फिर केमिकल आपका कुछ हो गया, तो वैसे मटेरियल्स के लिए आपका शेल्फ लाइफ होता है। तो वो शेल्फ लाइफ इनटू डेज वी नीड टू मेंटेन। डेज में आप मेंटेन कर सकते हो, इधर मंथ में, वीक में, ईयर में भी आप मेंटेन कर सकते हो। क्लियर, शेल्फ लाइफ सभी को पता है, राइट। तो शेल्फ लाइफ आपको कौन, एग्जैक्ट शेल्फ लाइफ आपको कौन देगा ऑफ दैट मटेरियल,
आपका मैम ये वेंडर। तो सप्लायर ही देगा ना जो मटेरियल दे रहा है? हाँ हाँ, करेक्ट। अगेन बेसिकली हमारे एंड से भी वो टीम होनी चाहिए जो ये प्रॉपरली मॉनिटर कर रहा है शेल्फ लाइफ एंड ऑल। तो वो आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट करेगा। ओके, क्लियर? वो चेक करते रहते हैं कि किसके शेल्फ लाइफ यस, खत्म हो गई फिर। ओके। करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली ये डेटा तो आपको पहले वेंडर से ही आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे मेंटेन करना होता है। ओके, तो ये भी डेटा आपको मिल जाएगा फ्रॉम योर वेंडर। देन टॉलरेंसेस जैसे हमने डिस्कस किया था, अंडर डिलीवरी ओवर डिलीवरी टॉलरेंसेस, ये हमारा पार्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे हमें रियल टाइम भी कुछ मेंटेन नहीं करना है। देन जीआर बेस्ड इनवॉइस इंडिकेटर, देन इवेलुएटेड रिसिप्ट सेटलमेंट का भी एक टॉपिक है। तो उसका पर्पस आपको जब समझ में आएगा तब आपको एक्टिव करोगे इनएक्टिव रखोगे तो उसका पर्पस तब हम समझेंगे। अभी फिलहाल इसको इनएक्टिव ही रखना है। अनलिमिटेड का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। देन यहाँ पे जो प्रोसीजर है दैट इज प्राइसिंग प्रोसीजर। जो प्रोसीजर हम पूरा क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने बोला, उसमें आपका प्राइस, उसके आप में सप्लीमेंट्री कंडीशंस होंगे। तो वो प्रॉपरली एक प्रोसीजर जब क्रिएट होगा दैट प्रोसीजर का कोड आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे फॉर इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेंडर एंड मटेरियल, राइट? हम्म। लेकिन इसमें जो डिटेल्स है ज्यादातर मटेरियल का ही, वेंडर रिलेटेड कुछ है ही नहीं, तो खाली नंबर ही वेंडर रहेगा का उतना ही। सिर्फ नो नो वेंडर का सिर्फ कोड, ऑब्वियसली उस कोड में सभी वेंडर का डिटेल्स है ही ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। अच्छा, ओके, अच्छा। तो अच्छा, हमने इस कोड के साथ ये डिटेल फिट कर दी, कोड का तो अलग डिटेल है ही। ओके। यस यस, सिस्टम ऑटोमेटिकली वो डेटा होता ही है ना सेंट्रली सप्लायर अच्छा, का। वो तो हम अलग से चेक कर सकते, बीपीएम में चेक हो यस जाएगा। ओके। यस, मोस्टली मटेरियल रिलेटेड ही यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपने कहा राइट कि कितने प्राइस में ले रहे हो वो मटेरियल आप, मतलब फ्रॉम योर वेंडर, उसका शेल्फ लाइफ हो गया, फिर उसके टॉलरेंसेस आप रख रहे हो, फिर से आप बोल रहे हो कि ये मटेरियल मेरा जीआरएन होके ही इनवॉइस होना चाहिए, डायरेक्टली इनवॉइस के लिए नहीं जाना चाहिए। देन ये इसके लिए ऐसे ही सप्लीमेंट्री कंडीशन है, इतने ही डिस्काउंट्स है, ऐसे फ्राइट चार्जेस है, उसके लिए प्रोसीजर है। ओके मैम, समझ रहे इसमें हो? प्राइसिंग इन्वॉल्व नहीं होती? कहीं भी प्राइस नहीं है? प्राइसिंग मतलब यहाँ पे कहीं भी प्राइस मेंशन नहीं करना, मतलब कितने है प्राइस ना, में ले रहे यहाँ हैं? पे ना, यहाँ पे है अच्छा है। दिस। अभी फिलहाल तो हमें सिर्फ नेट प्राइस ही मेंटेन करना है। पर जैसे मैंने आपको सप्लीमेंट्री कंडीशंस एंड ऑल कहा है ना, वो यहाँ पे इस कंडीशंस में मेंटेन किया था। लेट मी मेंटेन जस्ट रैंडमली, मैं 100 रुपीज रख रही हूँ पर पीस। हाँ, यहाँ पे कंडीशंस में प्लान डिलीवरी टाइम हम 10 रख रहे हैं। अब मैं कंडीशंस में हूँ, तो यहाँ पे ना वो सभी सप्लीमेंट्री कंडीशंस मेंटेन किए गए थे। लेट मी शो यू वन। ये देखिए, उसके फ्राइट चार्जेस एंड बहुत सारे आपका नॉन डिडक्टेबल टैक्स वगैरह भी होता है, कस्टम चार्जेस भी होते हैं राइट, परसेंटेज बेसिस पे लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस होते हैं, सर्च चार्जेस होते हैं। तो ये हो गया आपके सप्लीमेंट्री कंडीशन। ये सप्लीमेंट्री कंडीशंस हम प्राइसिंग में देखने वाले हैं इन डिटेल। समझ रहे हो? अभी वो देखना नहीं है हमें, सिंपली हमें सिर्फ क्या मेंटेन करना है, सिर्फ आपको मेंटेन करना है ग्रॉस प्राइस 100, एक्चुअल प्राइस ऑफ द मटेरियल। फाइन। ओके, अगर कुछ कैश डिस्काउंट वगैरह नहीं हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये एक्टिव करना होगा। ठीक है, बट आगे जाके हमें वो डिस्काउंट वगैरह वो फैक्टर्स भी देखना है, तो मैं यहाँ पे इनएक्टिव रखूंगी। बाकी यहाँ पे हमारा काम नहीं है, ये पूरा आपका कौन मेंटेन करेगा, एसडी का पर्सन मेंटेन करेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे प्राइस मेंटेन करना है। अभी देखिए, लेट मी शो यू दैट जनरल डेटा, वो हमने जो मेंटेन किया था ऑर्डर यूनिट का। देखिए, ओके, यहाँ पे ऑर्डर यूनिट हमने पीसेस डाला था, मुझे यहाँ पे एमजी रख के यहाँ पे आपका इंटू 10 होना चाहिए। पैकेट इंटू पीसेस जो हमने दिखा था ना, दैट वन थोड़ा उल्टा हो गया ये, बट आपको क्लैरिटी आ गई कि ऐसे कन्वर्जन हो सकते हैं। समझ गए? ओके। यस, तो ये कन्वर्जेंस पॉसिबल है। देन आप यहाँ पे भी वो डेटास, जैसे हमने डेटास देखे थे ना कि मटेरियल के लिए भी देखा था, वेंडर के लिए भी देखा था, सेक्शंस। सो लाइकवाइज वी हैव जनरल डेटा इनटू दिस, वी हैव परचेस ऑफ डेटा, देन कंडीशन डेटा, राइट। टेक्स्ट, अब यहाँ पे टेक्स्ट पे क्या होता है मैं जस्ट दिखाती हूँ, एंटर कीजिए। अभी ये डेटा हमने मेंटेन किया, टॉलरेंस भी मेंटेन कर लेते हैं, कितना भी आप मेंटेन कर सकते हो, नो मैम लिमिट। जो आप मैम बोल रहे थे ना, उसमें एक डाउट था मैम, नीचे के जो कन्वर्जन वाले पॉइंट पे। अच्छा ऑर्डर यूनिट के। ना, ऑर्डर यूनिट वाला कन्वर्जन नीचे वाला। हाँ हम्म मैम, मान लीजिए ये जो पीसेस और ये क्या कहते हैं, ये वन पीस का हमने 10 केजीज किया, ठीक है, हमने यहाँ जो भी मेंशन हम्म किया, जब हम्म जीआरएन होगा तो उसमें जो यूजर क्या डालेगा, पीसेस डालेगा केजी डालेगा?
पीओ में तो अपना एमजी होगा ना, पीओ में एमजी क्योंकि ये होगा। इंटरनल है। यस। ओके ओके, अच्छा केजीस में होगा, ओके। और जिस पीसेस है, मान लो उसमें 100 जीआरएन पीसेस में है। कन्वर्जन यूनिट करके फिर उसके हिसाब से जीआरएन होगा, ऑर्डर यूनिट के हिसाब से ओके, जीआरएन। फॉर एग्जाम्पल मान यहाँ पे 1 पीस इसको 10 केजी, अगर 10 पीसेस आते हैं तो ऑटोमेटिक 10 10 10 100 ले करेक्ट। लेगा वो। यस। ओके जीआरएन में आपका ऑर्डर यूनिट का कन्वर्जन फैक्टर होना जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे आप इनवॉइस करते हो। ओके। इनवॉइस, तो मैम इनवॉइस के लिए 100 केजीस होंगे कि 10 पीसेस होंगे? इनवॉइस के लिए ना इनवॉइस के लिए, 10 10। इनवॉइस के लिए 10 पीसेस होंगे। हमारे जीआरएन यस। के लिए 100 केजीस और क्या इनवॉइस में 10 पीसेस ही होगा? इनवॉइस में सेम 10। सेम में 10, ओके। जीआरएन में इनवॉइस में इवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट के उसके बेसिस पे आपका 10 ही होगा, 10 के हिसाब से ही पेमेंट किया जाएगा। 10 पीसेस के हिसाब से, ओके यस, सिर्फ पीओ निकलेगा तो वो आपका इंटरनली 1 का ओके होगा। ओके। समझ गए? यस। ओके। मिट एंटर। और क्या बाकी था यहाँ पे? जीआर बेस्ड इनवॉइस इंडिकेटर। हाँ सॉरी, ये एक्टिव नहीं करना है। ये मैं इस पे हमारा टॉपिक होगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इवन ये प्राइसिंग प्रोसीजर जब होगा तब आप यहाँ पे वो मेंटेन कर सकते हो। अभी मैं स्टैंडर्ड ले लेती हूँ। अच्छा, वो स्टैंडर्ड भी आई थिंक नहीं हुआ कॉन्फ़िगर। नो 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 इश्यू, ब्लैंक ही रखते हैं। जब कॉन्फ़िगर करेंगे उस वक्त ले लेते हैं। शेल्फ लाइफ आप रख सकते हो, नहीं रखना है तो मत रखिए। ब्लैंक रखना है तो ब्लैंक रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। शिपिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बोला, शिपिंग इंस्ट्रक्शन कस्टमाइज करना पॉसिबल है। कस्टमाइज करते ही हैं, मोस्ट ऑफ कस्टमाइज ही करना होता है, क्योंकि मैंने बोला ना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई भी हो सकता है। राइट। सो दैट वन। ओके। अभी हम रख रहे हैं इसका 100। अभी ये 100 पीसेस, मतलब ये 100 रुपीज जो आप मैं आप मेंशन कर रहे हो पर पीस के हिसाब से, तो ये 100 ही है, ये कौन बताएगा आपको? मतलब कौन से बेसिस पे डिसाइड करोगे? अगेन कोटेशन। समझ गए मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मटेरियल में प्राइस, मटेरियल मास्टर में प्राइस अलग होते हैं। इसमें जो प्राइस होगा ये कौन डिसाइड करेगा? देखिए यहाँ पे तो अलग है। समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रही हूँ आपको? मटेरियल तो सेम है, मटेरियल मास्टर में तो इसकी प्राइस कुछ अलग है। यहाँ पे तो मैं 100 मेंशन कर रही हूँ। ये देखिए, तो पीआर में आप जो प्राइस मेंशन करोगे या फिर मेंटेन करोगे, दैट विल बी, द डेटा विल बी गिवन बाय योर वेंडर वाया कोटेशन। वेयर एज दिस थिंग्स विच यू आर मेंटेनिंग while क्रिएटिंग अ मटेरियल, ये आप इंटरनली रख रहे हो। आप इसको ब्लैंक भी रख रहे हो, आप जीरो भी रख रहे हो ना, तो सिस्टम उसको एवरेजली कैलकुलेट करेगा, क्योंकि हमने क्या लिया था? मूविंग एवरेज प्राइस। ओके। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है? नो प्रॉब्लम। इस पे हमारा और एक टास्क है, मूविंग एवरेज प्राइस एंड स्टैंडर्ड प्राइस। तो सिस्टम कैसे एवरेजली कैलकुलेट करता है करके। ओके। तो वो प्राइस एवरेजली कैलकुलेट करके आ गया है यहाँ पे। बट फिलहाल इतना याद रखिए, पीआर में जो आप प्राइस मेंटेन करोगे तो वो वेंडर से मिलेगा वाया कोटेशन, दैट्स इट। क्लियर? हाँ, कल आपका डाउट था ना बहुत लोग, ये इसमें कुछ लिमिटेशन है क्या टॉलरेंस का? कोई लिमिटेशन नहीं, कितना भी आप मेंटेन कर सकते हो। ओके फाइन। सो नो लिमिटेशंस, यू कैन। मैं 2% रखती हूँ, अलग अलग भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। हाँ, फिलहाल तो इतना ही मेंटेन कीजिए। इवन अगर जैसे मैंने बोला आपको पता नहीं अभी के लिए हमें कौन कौन सा डिटेल मेंटेन करना है, याद नहीं रखना पॉसिबल है, तो मैंने शीट में मेंशन किया प्रॉपर्ली कि कौन कौन से डिटेल्स मेंशन करना है या फिर मेंटेन करना है करके। फाइन, एंड देन डायरेक्टली एंटर एंटर करके आप सेव कर सकते हो। अगेन आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हो, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा टू पे। वहां पे आपको सिस्टम पूछता है कि रेफरेंस, ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कोटेशन के रेफरेंस ही है आपका ये पूरा डेटा जो मेंटेन कर रहे हो। तो कोटेशन का जो नंबर आएगा, जो कोटेशन क्रिएट होगा सिस्टम में, तो वो कोटेशन कैसे क्रिएट करना है वो हम P2P साइकिल में देखने वाले हैं। तो वो कोटेशन का कोड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अभी आप फिलहाल ब्लैंक रखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेव कर सकते हो, बट रियल टाइम में यहाँ पे कोटेशन का आपका कोड होना चाहिए। फाइन। और ये कोटेशन का आपका जो लिमिट, लिमिट मतलब आपका जो डेडलाइन आप बोल सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। ओके, देन एंड अभी नाउ वी आर इनटू टेक्स्ट ओवरव्यू।
अभी यहाँ पे टेक्स्ट में क्या, अगर इंटरनल पर्पस के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन पास करनी हो या फिर मेंटेन रखना हो इनटू सिस्टम, तो यहाँ पे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आप रख सकते हो। इंटरनल पर्पस के लिए होता है। ओके, टेक्स्ट फॉर्मेट में आप मेंटेन करके रखोगे रिलेटेड टू दिस मटेरियल एंड वेंडर। एंटर, अभी ब्लैंक रखना है। ओके, डायरेक्टली एंटर करके आपको यस आई वांट टू सेव हो गया, और यहाँ पे ये आपका परचेस इन्फो रिकॉर्ड नंबर आएगा। तो ये परचेस इन्फो रिकॉर्ड नंबर आपको प्रॉपरली मेंशन करके रखना है यहाँ पे। मैम इस परचेस इन्फो रिकॉर्ड का नंबर मैंने कॉन्फ़िगर करते नहीं करते? नो, कल मैंने हाँ आपको आप बताया था ना कि बताया था, हाँ इनफाइनाइट आप होगा। बताया था, हाँ इनफाइनाइट का। ओके, इनफाइनाइट करके रखा हुआ है, तो अलग से कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, ओके। ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला आपको कि लाइक एक मटेरियल एक वेंडर के लिए अलग अलग पीआर कैटेगरीज होंगे तो क्रिएट कर सकते हैं, यस वी कैन। तो लेट्स सी, सेम मटेरियल सेम वेंडर के लिए हम क्रिएट करेंगे बट कैटेगरीज हम डिफरेंट रखेंगे। सो आई विल बी सिलेक्टिंग एज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, एंटर। ओके, एंटर। अभी अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना, जनरल डेटा सेम एज इट इज वही रहेगा जो आपने स्टैंडर्ड के लिए लिया था। 1 मिनट, लेट मी मेंटेन दिस। तो यहाँ पे अगेन, अभी सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए अगर मैं मेंटेन करती हूँ, तो यहाँ पे जो प्राइस आएगी ना, वो आपकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस आते हैं। तो जब हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस देखेंगे तो उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली द सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस आर। मतलब जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब जो प्रोसेस आपके इन हाउस नहीं हो रही है, दैट प्रोसेस यू आर गोइंग टू डू फ्रॉम एनी अनदर आउटसाइड वेंडर। कोई भी एक वेंडर होगा या फिर कोई एक आपका थर्ड पार्टी जो प्रोसेस करवा के दे रहा है, फॉर एग्जांपल नॉट वेंडर वी कैन से, कोई भी एक सप्लायर जो, या फिर आपका थर्ड पार्टी पर्सन आप बोल सकते हो, तो वो आपको वो प्रोसेस करवा के दे रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आपके एंड से आप खुद का मटेरियल ही सेंड कर रहे हो, रॉ मटेरियल्स, और उसमें वो प्रोसेसिंग करवा के आपको जब वो फिनिश मटेरियल भेजेगा रिटर्न में, तब आपको वो कौन से चार्जेस पे करने होते हैं, वो प्रोसेसिंग चार्जेस। तो उस वक्त सब कॉन्ट्रैक्टिंग में यहाँ पे एक्चुअल मटेरियल की प्राइस नहीं आती, यहाँ पे वो चार्जेस की प्राइस आती है। तो मैं रख रही हूँ यहाँ पे, मान लीजिए 50 रुपीज चार्जेस ऑन दैट मटेरियल। तो अभी आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, वो हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट पे इन डिटेल देखेंगे। देन प्लान डिलीवरी टाइम जो होगा मेंशन कर दीजिए। लेकिन मैम सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? सब कॉन्ट्रैक्टिंग वही तो, मतलब जो प्रोसेस आपकी इन हाउस नहीं हो रही है, मान लीजिए जैसे मैंने लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग का आपको बोला था, तो उसके लिए कोई एक जो असेंबल का पॉइंट है वो आपके यहाँ पे असेंबल नहीं हो रहा है, उसके लिए कुछ आपके लिए मशीनरीज चाहिए, जो मशीनरी आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर आपके पास वो मैन पावर अवेलेबल नहीं है, तो आपको तो डिलीवर करना है वो कस्टमर को जल्द से जल्द। फिर आप क्या कर रहे हो, आप मार्केट में देखोगे कि वो कौन ये मुझे असेंबल करके देगा, या फिर कौन ये कि जिसके पास ये मशीनरी अवेलेबल है, वर्क मैन पावर अवेलेबल है, राइट। तो वो सर्च करके फिर व्हाट यू हैव टू डू, आपके एंड से आप रॉ मटेरियल सेंड कर रहे हो जो लैपटॉप के असेंबल के लिए चाहिए, राइट। तो वो रॉ मटेरियल्स तो आपने ऑलरेडी किसी ना किसी से तो परचेस किया होगा, उसका ऑलरेडी अमाउंट पे किया हुआ है आपने, राइट। राइट। जैसे मैंने मान लीजिए स्टैंडर्ड इसी मटेरियल के लिए इसी वेंडर को मैंने क्या किया था, क्या बोल सकते हैं आपने, प्रोक्योर किया था आपने, बट इसी को बोल रहे हो आप सिर्फ इतना ही असेंबल करके दे दीजिए, या फिर इसके अलावा दूसरा कोई भी वेंडर हो सकता है जो आपको वो असेंबल करके दे देगा। तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, आप आपके एंड से खुद के रॉ मटेरियल सेंड कर रहे हो, जिसका ऑलरेडी किसी को पेमेंट किया हुआ है आपने, जिससे ऑलरेडी किसी से ना किसी से प्रोक्योर किया हुआ है, तो आप वो सेंड करके वो असेंबल करवा के वो रिटर्न आपको वो असेंबल करके दे देगा वो पर्सन, थर्ड पार्टी पर्सन, राइट। तो आप क्या ओके। करोगे उस केस में, फिर क्या पे करोगे, मतलब कौन सा चार्ज पे कर रहे हो एक्चुअल, वो चार्जेस जो प्रोसेसिंग चार्जेस आप बोल सकते हैं, इन शॉर्ट असेंबल के चार्जेस, ओके। नॉट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट मटेरियल। ओके। सो जस्ट आई हैव कंसिडर एज 50 करके, 50 रुपीज पर पीस वो असेंबल के चार्जेस ले रहा है करके, ओके। ओके। समझ गए। तो इन ओके। डिटेल ये हम और देखने वाले हैं कि कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होती है, कैसे हम मटेरियल सेंड करते हैं, कैसे वो असेंबल करके हमें वो चार्जेस पे करना होता है। उसके लिए एक और एक प्रोक्योरमेंट है सब कॉन्ट्रैक्टिंग करके सेपरेटली। ओके, ओके मैम। या ओके। देन
यहाँ पे तो ऑब्वियसली टॉलरेंसेस तो होंगे ही नहीं, जितना सेंड करे तो उतना तो रिटर्न में आएगा ही। जीआर होना चाहिए, मतलब जीआर होके ही आपका इनवॉइस होना चाहिए। देन मैम वो यहाँ पे एक टॉलरेंस बात वाला और, पॉइंट मत बताइए, क्या सब कॉन्ट्रैक्ट में टॉलरेंस वाला पॉइंट क्यों नहीं मेंशन करना है? आप रॉ मटेरियल्स, आपको पता है कि आप 5 रॉ मटेरियल्स बेच रहे हो, तो ओके। पांचों का पांचों ही आपको असेंबल करके होके आने ही वाला है। तो ओके। उसमें तो कुछ कम ज्यादा होगा ही नहीं, इसीलिए टॉलरेंस मेंटेन नहीं कर रही हो। ओके, ऐसा है मैम, हो सकता है उनमें हाँ, कुछ इशू हो कि हम आपने 5 बेचे थे लेकिन हम 3 ही वापस कर रहे हैं, नहीं हो सकता? मोस्टली तो नहीं होता है, बट इन केस हो भी जाता है तो यू कैन मेंटेन दैट टॉलरेंस फिर। ओके। मोस्टली नहीं होता, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में होता ही नहीं है। जितना आप ये कर रहे हो वो भेज ही देते हैं। ओके, अच्छा ऐसा। ओके, बट इन केस हो भी जाता है तो इन दैट केस यू कैन मेंटेन टॉलरेंसेस, इट विल वर्क। ओके, मैं तो इन दैट केस हमें पहले मेंटेन करके जीआरएन करना होगा, कि हम जीआरएन कर सकते हैं और बाद में मेंटेन कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, पहले मेंटेन करना है, देन यू हैव टू डू जीआर। ओके। ओके, देन ओके, बस इतना ही, एंड सेव इट। मैम इसमें अभी कंडीशन मेंटेन नहीं करना? कंडीशंस, वही तो अभी कंडीशंस में है कि हमारा डिस्काउंट है ना, फ्राइट चार्जेस, हाँ सप्लीमेंट्री हाँ। कंडीशंस, अच्छा वही। वो अभी तो हम मेंटेन नहीं करेंगे, बट यस रियल टाइम में हमें मेंटेन करना है, उसके अलग अलग कंडीशन टाइप्स होंगे तो वो मेंटेन करना होगा, राइट। अब अगेन, मैम वो हम स्टडी करने वाले बात। यस, ओके। देन जैसे मैंने बोला था कि सेम मटेरियल के लिए, सेम वेंडर के लिए आप पहले स्टैंडर्ड अपने इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट किया, एंड यू आर क्रिएटिंग फॉर द सेम कॉम्बिनेशन के लिए सिर्फ इन्फो कैटेगरी अलग है ना, तो वो पहले का इनिशियल डेटा जो आपने जनरल डेटा में मेंटेन किया था वो एज इट इज सिस्टम लेगा, विच विल बी सेम, वो कुछ डिफर नहीं होगा। ओके, एंड सेव इट। ओके, सो कितने इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट हुए हैं आपके? दो। कुछ डाउट्स मैम इसमें? ऐसे कुछ देख सकते हैं, मान लो इन्फो रिकॉर्ड है, इन्फो रिकॉर्ड नंबर हमें नहीं मालूम है, हमें ये मटेरियल मालूम है, हमें इस मटेरियल के अंडर कितने इन्फो रिकॉर्ड है वो चेक करना है, उसका कोई टी कोड है? यस, MEM1M जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया शीट में। ओके, शीट पे। ME1 में ही आप ME1M में ही चेक कर सकते हो। ओके, Yes. लिस्ट ऑफ यार मटेरियल, अच्छा वहाँ पे है। Yes. ओके। या ओके, मैम बाय वेंडर चेक करते हैं कि वेंडर के कौन कौन से इन्फो रिकॉर्ड है? वेंडर से भी चेक कर सकते हैं आप। लेट मी शो यू। वेंडर ग्रुप वाइज, इन्फो ओके। कैटेगरी वाइज, अच्छा कर, ओके सिलेक्शन वेंडर। क्राइटेरिया है आपके पास, इवन डिस्काउंट वाइज, कॉस्ट, बहुत बहुत सारे आपके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया है यहाँ पे। ओके, अगर हम मटेरियल नहीं डाल के वेंडर डाल देंगे तो वेंडर के अकॉर्डिंग। यस, अभी मान लीजिए तो क्या था हमारा, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे मटेरियल, स्टैंडर्ड परचेस और एंड प्लांट मेंशन कैन जस्ट एग्जीक्यूट करके मुझे दो दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। ये तो हमारा नहीं है ना सप्लायर, ये हमारा सप्लायर है, इसके लिए अब भी हमने क्रिएट किया है, बराबर। यस मैम। स्टैंडर्ड इन्फो कैटेगरी में रिमूव करते, दो दिखने चाहिए हमारे, क्योंकि स्टैंडर्ड भी और सब कॉन्ट्रैक्टिंग का दिखना चाहिए। ओके, आगे अभी देन अगर मैं सिर्फ वेंडर वाइज जा रही हूँ, यू विल गेट दैट लिस्ट। ओके, स्टैंडर्ड एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, क्लियर। वेंडर में सर्च करते हैं, अगर हम मटेरियल हटा दें तो उस वेंडर के सारे मिलेंगे? हाँ, उस वेंडर के सब मिल जाएंगे आपको। अभी तो हमारा एक ही हमने क्रिएट किया हुआ है ना, तो आपका उतना ही दिखेगा। ओके, ओके। अगर मैं मेरा वेंडर डाल देती हूँ, मेरे वेंडर के लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्रिएट किए हुए हैं फॉर दिस, सो आई कैन गेट लिस्ट, बहुत सारी लिस्ट आपको मिलेगी, बहुत सारी क्रिएटेड है। मैंने मोस्ट ऑफ टाइम ये लेती हूँ मैं रेफरेंस के लिए। मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, ये कैसे पढ़ते हैं एक बार बताइए कि?
मिनट, अभी फॉर एग्जाम्पल ये 2010 जो है, दिस इज योर सप्लायर का कोड, उसका नाम, दिस इज योर इन्फो रिकॉर्ड का नंबर, ये आपका परचेस और कौन सी प्रोक्योरमेंट है, मतलब कौन सी कैटेगरी, इन्फो कैटेगरी, दिस इज योर परचेस ग्रुप, कितनी डेज का आपका प्लान डिलीवर टाइम था, कितना पीसेस आप मतलब प्रोक्योर करने वाले या फिर आप अभी तक प्रोक्योर किया है। अगेन यहाँ पे पीओ वगैरह निकाला होगा, तो उस पीओ में कितना प्राइस आया था, काइंड ऑफ वो चीज़ है पर पीस के हिसाब से, कि पीओ का नंबर है, क्योंकि यहाँ पे पीओ ऑलरेडी इसके बेस पे ही पीओ ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज द डेट, कब क्रिएट किया था, ये 21/11 को क्रिएट किया था इन 2025। वो पूरा इन डिटेल दिख जाएगा। अभी ये आपको न्यू है ना, इसलिए पता नहीं है। यहाँ पे भी उसका दिया हुआ है, प्राइस, ओरिजिन, पाइप परचेस और का नंबर, प्लांट, लाइक वाइज। ये थोड़ा ओके, कंफ्यूजिंग है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, समझ फिर सकता आपको हूँ। ये रीड करते आ ओके, जाएगा। और मैम अगर हम यहाँ से इन्फो रिकॉर्ड कॉपी करके इन्फो रिकॉर्ड की डिटेल खेलें तो हम इनसाइड डिटेल्स भी देख सकते हैं। हाँ, और अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे नहीं वर्क हो रहा है, 1 मिनट। अगर नहीं वर्क होता है, नो प्रॉब्लम, जस्ट कॉपी कर लीजिए। मान मान लीजिए वो केडीएस फाइल ही करप्ट हो गया है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप चेंज मोड में जाके या फिर डिस्प्ले मोड में जाके पूरा डिटेल्स रिमूव कर दीजिए। मैंने इन्फो रिकॉर्ड का नंबर लिया है ना, ये इन्फो रिकॉर्ड का नंबर लिया है, कॉपी किया है, जस्ट मैं यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड का नंबर पेस्ट करता हूँ। ओके, उसके लिए मेंटेन ही नहीं है। मैं परचेज और वाइज जाती हूँ। नहीं, मेंटेन ही नहीं है। नो परचेस ऑर्गेनाइजेशन डेटा एग्जिस्ट। वे परचेस ऑर्ग 1 मिनट, P0101। ओके, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए स्टैंडर्ड लिया था ना यहाँ पे, इसलिए सिस्टम स्टैंडर्ड के लिए नहीं बता रहा है। अगर मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग लेती हूँ तो सिस्टम मुझे दिखाएगा, राइट। ये देखिए, मेंटेन किया हुआ है डेटा, प्राइस उन्होंने 0 ही रखा है, बट एटलीस्ट उन्होंने मेंटेन किया है कौन सा परचेज और स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड ऑल। बाकी इन डिटेल मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप ओके, देख सकते हो ऐसे भी। अच्छा, मतलब इनसाइड डिटेल्स। यस, ये आपका इन्फो रिकॉर्ड के नंबर्स है। अगर हमारा देखते हैं हम, कंट्रोल वाई करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके, कंट्रोल वाई, कॉपी पेस्ट डायरेक्टली, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, बट सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल वाई करना होता है यहाँ पे। अभी देखिए, ये रेड तो ऐसे आ रहा है, ये कंप्लीटली सिलेक्ट नहीं हो गया, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल वाई पे मतलब क्लिक करना है, देन यहाँ पे ऐसे कर्सर लेके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्लस जैसा आइकन आ जाएगा ना, मतलब सिलेक्ट के लिए रेडी है। ओके, फॉर स्टैंडर्ड ऑल्सो यू कैन चेक। क्लियर? मैम वो डाउट्स? बोथ इन्फो कैटेगरी के लिए इन्फो रिकॉर्ड नंबर सेम ही है। हाँ, अभी यहाँ पे जस्ट प्रॉब्लम क्या हुआ है, उन्होंने सिस्टम में ऐसा कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि एक ही इन्फो रिकॉर्ड नंबर जनरेट कीजिए। आप अलग अलग भी कर सकते हो, एक भी कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो। एक मिनट, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या मेंशन किया था, सप्लाई ऑफ, ओके, इन्फो कैटेगरी, रिमूव दिस एंड एग्जीक्यूट। एक ही हुआ है, स्टैंडर्ड के लिए भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए एक ही हुआ है। तो वो कॉन्फ़िगर, मतलब वो आप कहाँ पे कर सकते हो लिंकेज, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। ओके, केडीएस में 33 हो गया है मैम। तो। आई थिंक हमने अलग अलग लिया ना, ओके ओके।
Yes. यहाँ पे भी मैंने कन्वर्जन फैक्टर का दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी मैंने जीआरएम बेस्ड इनवॉइस इंडिकेटर का दिया हुआ है, बट अभी मत फिलहाल देखिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, सिनेरियोस टास्क है आपके लिए। पहले आप जस्ट नॉर्मली जो अभी मैंने दिखाया ना आपको इन्फो रिकॉर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो जस्ट पहले ट्राई कीजिए। फिर आपको ये टास्क देने वाली हूँ कि ये सिनेरियोस कैसे वर्क होंगे करके। सप्लायर इज रिक्वायर्ड फील्ड और नॉट, अगर रिक्वायर्ड होगा तो सिस्टम विदाउट मेंटेनिंग सप्लायर आप इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, दैट वी नीड टू चेक, यू नीड टू चेक फ्रॉम योर एंड। विदाउट मटेरियल सिस्टम अलाउड टू क्रिएट पीआईआर और नॉट। ओके, ओके, ये एक्सपेंस पीओ का मत देखिए, एक्सपेंस अभी तक हमने देखा नहीं है दिस वन। हाँ, विदाउट परचेस ऑर्ग वी कैनॉट क्रिएट पीआईआर, जस्ट ट्राई। देखिए सच्ची में अगर मैं इन्फो रिकॉर्ड सॉरी परचेस ऑर्ग नंबर अगर नहीं डालती हूँ तो मेरा डायरेक्टली पीआईआर नंबर क्रिएट होगा या नहीं। ओके, अगेन विदाउट प्लांट सिस्टम अलाउड टू क्रिएट पीआईआर और नॉट, ये ट्राई करना है। ये आपको ये शीट में आपको सेंड कर देती हूँ। अगेन ये एक टास्क है रेगुलर सप्लायर का, आप जस्ट एक्टिवेट करके देखिए एक सप्लायर के लिए। जब एक पीआईआर क्रिएट करोगे और आगे जाके सिस्टम आपको कुछ क्या बोलते हैं वार्निंग मैसेज दे रहा है या फिर क्या हो रहा है, सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रही है, जस्ट यू नीड टू चेक दैट। क्लियर? ओके, यहाँ पे मैंने इन रियल टाइम डेटा माइग्रेशन टूल विल भी दिया, जैसे मैंने बोला अभी आप सिंपली एक एक क्रिएट कर रहे हो, बट इन रियल टाइम आपका माइग्रेशन डेटा माइग्रेशन टूल वहां पे होंगे। तो वाया दैट यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ परचेस इन्फो रिकॉर्ड इन रियल टाइम। फाइन, कुछ डाउट्स इसमें? मैम, हम्म। ये एक बार प्रोसेस फ्लो समझाना, मतलब पीआर जनरेट होगा, उसके बाद अपन लोग कोटेशन भेजेंगे, फिर वेंडर से कोटेशन आएगा, तो वो हम्म, कोटेशन जैसे आएगा वैसे अपन लोग इसमें अपडेट इन्फो करेंगे क्या रिकॉर्ड मेंटेन पीआईआर में, करेंगे, करेक्ट। देखो पहले आपका आफ्टर पीआर गेटिंग द आएगा, कोटेशन? मतलब जनरेट होगा, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट जनरेट हम्म। होगी इंटरनली पीआर। फिर उसके बाद आप पीआर के बेसिस पे वो अगर वेंडर अवेलेबल है तो ओके, ऑलरेडी कोटेशन लिया होगा आपने, राइट। फिर आपका आरएफक्यू कहते हैं उसको, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, आरएफक्यू होगा। फिर उसके बाद आरएफक्यू जैसे आता है फिर आपको पीआर मेंटेन करना होता है इन्फो रिकॉर्ड। फिर उसके बेसिस फिर पीओ, पीओ फिर किसका किसका इसका भी रेफरेंस लेता है और इसका भी लेता है। जैसे मैंने कहा पहले प्रायोरिटी किसको जाएगा, फॉर मटीरियल का प्राइस एंड ऑल, पीआर को। ओके, पीआईआर। यस, क्योंकि पीआर में जो कुछ मेंटेन किया होगा वो करेक्ट है ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट पीआर क्रिएट करेगा, राइट। सो लाइक वाइज फिर पीओ जैसे हो जाता है, उसके बाद मटेरियल जैसे आएगा, फिर उसके बेसिस पे जीआरएन होगा। जीआरएन के बाद आपका इनवॉइस होगा एंड फिर पेमेंट, राइट। और फिर ऑर्डर आने के बाद जो जीआरएन होगा वो डेटा भी पीआईआर में जाके वापस अपडेट करेंगे क्या? सॉरी सॉरी, फिर से पूछिए। परचेस ऑर्डर दे दिया और अपने को हम्म, गुड्स मिल गए और अपन ने हम्म, जीआरएन भी कर दिया, तो ओके। जीआरएन होने के बाद भी वो वापस डेटा जाके पीआईआर में अपडेट करेंगे क्या कि क्वांटिटीज एंड ऑल सही से आ गए ये वेंडर की तरफ से? अगर वो टॉलरेंसेस नहीं हो रहा है, मतलब जैसे मैं बोला कम कम ज्यादा वगैरह हो रहा है, तो आपको सिस्टम यहाँ पे तो वार्निंग मैसेज देगा। तो फिर यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड में आपको मेंटेन करना होगा फिर वो चीजें, टॉलरेंसेस एंड ऑल, क्वांटिटीज वगैरह जो था, राइट। फिर जाके फिर आप उसमें मेंटेन करने के बाद यू कैन डू द गुड्स रिसिप्ट, इनवॉइस एंड देन पेमेंट। ओके। या, हेलो। यस। मैम, ये पीआईआर जो सर्विस बेस्ड वेंडर्स है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है ना? पीआर सर्विस बेस्ड के लिए एक एक किसके लिए है, वन प्रोक्योरमेंट। हाँ, आपका पाइपलाइन के लिए। पाइपलाइन तो होगा ना वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, तो उसके लिए है, सर्विस बेस्ड के लिए। हम्म, स्टैंडर्ड में भी कभी कभार आपको करना होता है, रीजन जैसे मैंने बोला स्टेशनरीज वगैरह आपको वो मटेरियल्स लेने होता है ना कंज्यूमेबल, तो यहाँ पे कंज्यूमेबल का है नहीं ना, तो कंज्यूमेबल के केस में आपको स्टैंडर्ड लेना होता है। दो तीन केसेस, दो तीन प्रोक्योरमेंट्स के लिए है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं होगा वहां पे और कंसाइनमेंट नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे सर्विस के केस में। ओके।
सर्विस और कंसाइनमेंट ये दोनों होंगे। ओके। मैम कंसाइनमेंट क्या है, ये कौन सा टाइप है? ये कंसाइनमेंट में क्या होता है सिंपली, बल्क में ना आपका क्लाइंट जो है वो प्रोक्योर करके रख लेते हैं उनके ही प्रीमाइसेस में, और जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल्स की वैसे वैसे वो यूज करेंगे उस कंसाइनमेंट मटेरियल से। बट वो कंप्लीटली जितना, मान लीजिए मैं 3000 पीसेज ले रही हूँ वेंडर से, मतलब आपका क्लाइंट ले रहा है 3000 पीसेज फ्रॉम योर वेंडर, राइट, कि 3000 पीसेस का उन्होंने पीओ निकाला, 3000 पीसेस का जीआरएम भी हो गया, आ भी गया, बट वो लोकेशन होगा सेपरेटली कंसाइनमेंट लोकेशन कहा जाता है। उस लोकेशन में रखोगे वो 3000 पीसेस, और जैसे जैसे आपकी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे आपको मटेरियल चाहिए होगा प्रोडक्शन के लिए, तो मान लीजिए 3000 लाया था, उसमें से अभी मुझे चाहिए 1000, मतलब आपके क्लाइंट को चाहिए, रिमेनिंग कितना है अभी उस लोकेशन में, 2000, राइट, कंसाइनमेंट लोकेशन में। फिर ये 2000 का जो ओनर होगा वो आपका वेंडर होता है, आप नहीं होते हो, अगर आपके प्राइम प्रीमाइसेस में होता है तभी भी। उसके रीजंस अलग अलग रीजंस हैं, सो वो हम कंसाइनमेंट में देखेंगे। बट ये 1000 जो आपने लिया है जिसका आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, उसका जीआरएम भी हो चुका है, ओके, तो उसके लिए आपको ये 1000 पीसेस के लिए पेमेंट करना होता है। फिर ये 1000 पीसेस का पेमेंट करने के बाद जो ओनर होगा वो क्लाइंट होगा आपका, और ये 2000 का आपका वेंडर, आपके क्लाइंट का वेंडर, मतलब अल्टीमेटली ये 3000 के लिए आपका वेंडर ही ओनर था, इन शॉर्ट। तो ये होता है कंसाइनमेंट का केस। ओके। ओके। ये भी इन डिटेल देखने वाले हैं हम, कंसाइनमेंट, पाइपलाइन, देन सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इंपोर्ट, कंज्यूमेबल, एक्सपेंस, आरटीपी, ये पूरा प्रोक्योरमेंट्स इन डिटेल देखने वाले हैं हम सभी। Okay. Yeah. और कुछ डाउट्स? ये मैंने बीच में कंटिन्यू होगा या आगे जाके कुछ अलग टॉपिक में इसको नहीं, करेंगे क्लियर? प्रोक्योरमेंट्स ना, हाँ। हाँ प्रोक्योरमेंट्स आपका ऑलमोस्ट अभी उसको 1 महीना लगेगा प्रोक्योरमेंट्स के लिए। ओके ओके, अगर कुछ डाउट्स नहीं सो विल वाइंड अप। मैम, अभी ये पीआईआर जैसे जनरेट होगा, मीन्स पीआईआर नंबर, हम्म। तो हम्म। उसके बाद पीओ क्रिएशन तो मतलब क्लाइंट ही करेगा ना फॉर हाँ प्रोक्योरमेंट? क्लाइंट ही, पीओ पीआर जो प्रोसेस होगा ना, पीआर का, पीओ का, हाँ। देन आपका जीआरएन भी इनवॉइस वो आपका क्लाइंट ही करेगा, बट आप उनके लिए सेट करके दोगे, और उनको भी आपको ट्रेनिंग देना होता है कि कैसे कैसे क्रिएट किया जाता है, पीआर, पीओ, जीआरएन कैसे किया जाता है, इनवॉइस कैसे किया जाता है, तो हमें उन्हें ट्रेनिंग देना पीआईआर होता है। नंबर शेयर करना पड़ता है फॉर पीओ क्रिएशन? हमें हमें शेयर करना होता है, ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ, यस। वो लिस्ट आपको शेयर करनी होती है, यस, ओके। पीआर की। एनी डाउट्स? ओके। ओके, विल वाइंड अप। थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय।